My precious children of God, I greet each one of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus मेरे Christ. बहुमूल्य प्रभु के बच्चों, हर एक को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बहुमूल्य नाम से बधाइयाँ देती Today the हूँ। promise verse which is given to us for meditation is from Psalm 86 verse 10. आज जो प्रतिज्ञा का वचन हमें ध्यान के लिए दिया गया है वह है भजन संहिता 86:10। For you are great and do marvelous deeds. You means the God, Almighty God. You are great and do marvelous deeds. You alone are God. क्योंकि तू महान और आश्चर्य काम करने वाला है। तू माने परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, महान और आश्चर्य काम करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। Deuteronomy chapter 10 verse 17 and Revelation 15:3 also says the same thing. व्यवस्था विवरण अध्याय 10 वचन 17, प्रकाशित वाक्य अध्याय 15 वचन 3, ये दोनों भी एक ही बात को कहते हैं। And what kind of great things the Lord will do? और किस प्रकार के महान कार्यों को ये परमेश्वर करते हैं। If you read Job chapter 5 verse 9 and 9 verse 10, we read about the great God like this. अगर आप अय्यूब की पुस्तक अध्याय 5 वचन 9 और अध्याय 9 वचन 10 में पढ़ोगे तो हमारे महान प्रभु के बारे में इस प्रकार लिखा है। God does great things, unsearchable, marvelous in number. वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी ताह नहीं लगती और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। He has done great things and he is going to do great things in your life, my उन्होंने friends. बड़े कर्म किए हैं और आपके जीवन में भी बड़े कार्य करने वाले हैं मेरे दोस्तों। And Psalm 107 verses 8, 21 and 31 says, Oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works for the children of men. भजन संहिता 107 वचन 8, 21 और 41 में लिखा गया है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वे मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। When you have to give thanks to the Lord, कब आपको यहोवा को धन्यवाद कहना चाहिए? not only when you receive the blessings of God, सिर्फ तब नहीं जब उनकी आशीषों को आप but पाते also हैं, when you are going through trials and temptations and when you are shedding tears of blood, that time you have to claim these blessings. लेकिन जब आप परीक्षणों, प्रलोभन और खून के आंसू से गुजरते हो उस समय में इन सारी आशीषों को बोलना है। And you have to remember what all the goodness and mercy you have received already in your life. और उस समय आपको याद करना है कि आपको क्या क्या भलाइयाँ और दया प्रभु ने जीवन में पहले ही दी है। Thank him from the bottom of your heart for all his goodness and mercy. और आपके दिल के भीतर से आपको सारी दया और भलाई के लिए धन्यवाद कहना है। Psalm 136 verse 4 says, Give thanks to him who alone does great wonders. From the hands of the enemies, Egyptians, the Lord miraculously saved his people, Israelites, with his mighty power. भजन संहिता 136:4 में लिखा गया है, उसका धन्यवाद करो, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। अपने शत्रुओं के हाथों से, मिस्रियों से परमेश्वर ने अपने बड़े सामर्थ और आश्चर्य कर्मों से इस्राएलियों को छुड़ाया। If you read Exodus chapter 14 verses 17 to 30 and 31, you will read all about अगर आप this. निर्गमन पुस्तक में अध्याय 14 वचन 17 से 31 तक पढ़ोगे तो सब लिखा है। Even today, my friends, you can receive wonders from the same God. आज के दिन में मेरे दोस्तों आप लोग भी उस परमेश्वर से ये आश्चर्य कर्म पा सकते He हैं। can save you from all your problems. वह आपकी सब समस्या से आपको बचा सकते And you can हैं receive wonderful things from the hands of God. और आप प्रभु के हाथों से अद्भुत कार्यों को पा सकते हो। Shall we pray? क्या हम प्रार्थना करें? Our precious Heavenly Father, thank you, Lord, for your wonderful love and supplying all the needs of your children.
हमारे बहुमूल्य स्वर्गीय पिता, आपके अद्भुत प्रेम के लिए और आपके बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। Whoever is crying at your presence, Father, give them all their needs and supply everything in a beautiful way, man. हे प्रभु, जो लोग आपके समूह में आंसू बहा रहे हैं, उनकी सारी जरूरतों को पूरा करके आश्चर्य से उन्हें भर दीजिए मालिक। Right now, let them receive whatever they need from you, Father. हे पिता, इस समय जो भी उन्हें चाहिए आपकी ओर से वे पाले। Give them a grateful heart. एक आभारी हृदय दे दीजिए। Bless them abundantly. बहुताई से उन्हें आशीष In कीजिए। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। My dear friends, I'm excited to invite you to our Jesus Calls Arunachal Pradesh Prayer Festival. मेरे प्यारे दोस्तों, यीशु बुलाता है अरुणाचल प्रदेश प्रार्थना महोत्सव में आपको आमंत्रित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। On November 8th and 9th. 8 और 9 नवंबर को इन सभाओं में बोलने के लिए आमंत्रित किया है। It's going to be at 3 p.m. each day. यह प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से होगा। So please come, and I know we'll richly be rewarded by God's blessings. आपका स्वागत है, आप जरूर वहां आशीष पाएंगे। Precious Suran Topno, along with you, I wish Mark John, Marvin George, your darling sons, a happy birthday today. अति प्रिय सुरन टोपनो, आपके साथ मिलकर के मार्क जॉन और मार्विन जॉर्ज, आपके प्रिय बेटों को कहना चाहूँगा, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। God blessed them according to Exodus 31:3 with the Spirit of God, wisdom, knowledge, understanding. परमेश्वर दोनों को ही निर्गमन 31:3 के अनुसार से आशीष दें, जहाँ परमेश्वर की आत्मा जो बुद्धि, प्रवृत्ति, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, उससे परिपूर्ण करे। Father, prosper both of them and increase them greatly. Increase in them greatly. और प्रभु यीशु, आप इन्हें आशीषित करके बहुतायत के साथ बढ़ाते जाएं। Suran, blessing in the job, and Sandhya Rani have a transfer to Ranchi in the name of Jesus. Let these blessings flow into them. Thank you, Daddy, for arranging it. सुरन को उनकी नौकरी में आशीष दें। संध्या रानी को प्रभु जी यीशु के नाम में राज्य के लिए ट्रांसफर मिलने पाए। उन्हें दें कि आशीष उनके जीवन में बहती चली आए। पिताजी, उनके जीवन में ऐसा ही करने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name, Amen. God bless you.